Let us see some examples on potential energy. Suppose we have two charges Q1 and Q2. The masses are M1 and M2, and separation between these two charges is R. They both are free to move and are initially at rest. And let's say both charges are positive. There are 2 point charges, they both are positive, free to move, and both are at rest initially. We need to find their velocities when separation between these two charges increases from R to 2R. So after some time, Q2 is found here, Q1 is found here, and separation between these two charges becomes 2R. But as they are pushed, they develop some velocity. By the time Q2 reaches this position, its velocity is v2, and Q1 has gained velocity of v1. We need to find v1 and v2. There are two charges, they are repelling each other. From separation R, when separation becomes 2R, we need to find their velocities v1 and v2. अब यहाँ पर एक चीज पहले ये देखते हैं कि हमने जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन डेवलप किया था उसके फायदे क्या क्या हैं. If without using potential energy one has to solve this question, then you need to find force, which is k times q1 q2 divided by r square. But now the problem is, this is a force only when time is 0 at the very beginning. But this r is continuously changing, separation is changing from r to 2r. That means this force is non-uniform. So if force is non-uniform, we'll have to use approach of integration, and then only we can find v1 and v2, which is not very difficult, but calculation part बढ़ जाएगा अगर आप force के approach से इस question को solve करने की कोशिश करेंगे. You will have to use integration. You will have to arrange relation between v1 and v2. We can do that, and we'll see that method for JEE advanced level classes. But right now, for school level examinations, we are interested in finding v1 and v2 with the help of this approach of potential energy. We cannot use equations like v square equals u square plus 2as because force is non-uniform. We cannot directly calculate work as force into displacement because force is non-uniform. But since we know that potential energy U of two charges is given by k times q1 q2 divided by r, we can use this formula and then we can solve this question. So let's see how we solve this question. First thing, the moment somebody holding these two charges q1 and q2 releases q1 and q2, we'll say that work done by external force becomes 0. जैसे ही आपने q1 q2 को रिलीज किया, एक्सटर्नल फोर्स गायब है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क गायब है. And when external work is 0, we use COME, conservation of mechanical energy. That is, sum of kinetic and potential energy initially and finally will remain same. Which means, we'll write like this: kinetic energy initial plus potential energy initial
kinetic energy final plus potential energy final. Initially kinetic energy, they both are at rest, is 0. Potential energy, separation is R, and therefore potential energy is K times Q1 Q2 divided by R. Now look here, we are finding kinetic energy of both charges individually, of Q1 0, of Q2 0. But potential energy is not of Q1, is not of Q2, but is of the system of Q1 and Q2 taken together. दो बार पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखनी है. पोटेंशियल एनर्जी Q1 की नहीं होती, Q2 की नहीं होती, वो होती किसकी है? K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R. जैसे 11th में आपने सुना होगा किसी मास m को अगर आप h हाइट पर रखते हैं अर्थ की सरफेस से, तो मास m की पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं mgh. लेकिन इनफैक्ट वो पोटेंशियल एनर्जी m और अर्थ दोनों को एक साथ लेकर है. केवल m की पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं है. क्यों नहीं है? हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा था जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को डेवलप किया था. पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है? वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स. इंटरनल दो होते हैं, एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन. जब तक दो नहीं होंगे तब तक एक्शन एंड रिएक्शन नहीं होगी, और जब तक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नहीं होंगे आपके लिए सिस्टम का कोई मतलब नहीं है. अब जैसे ही आपने Q1 एंड Q2 को रिलीज किया, एक्सटर्नल वर्क जीरो हो गया. एक्सटर्नल वर्क जीरो हो गया है, इसलिए आप मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर रहे हैं. फाइनली Q2 is at this position and is moving with V2. Its kinetic energy is half m2 V2 square. m1 Q1 is moving with V1 plus half m1 V1 square. बची हुई है पोटेंशियल एनर्जी. फाइनल सेपरेशन दोनों के बीच का हो चुका है 2R, इसलिए फाइनली पोटेंशियल एनर्जी बनेगी K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 2R. Initial mechanical energy, final mechanical energy when separation is 2R. But now there are two unknowns and we have got only one equation. This is equation number 1. Since there are two unknowns, we need two equations. This is the first equation which we got with the help of W external being 0. The second equation, look here. The moment you release Q1 and Q2, F external is also 0. There is no external force working on Q1 and Q2. Only internal forces are working. Q1 is repelling Q2 in this direction, Q2 is repelling Q1 in this direction. But these are internal forces. There is no external force, and if there is no external force on a system, we use this COLM, which is conservation of linear momentum. Remember, जब work done by external force 0 होता है तब हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करते हैं. जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है तब हम लीनियर मोमेंटम को भी कंजर्व करते हैं. अब लीनियर मोमेंटम के लिए स्टार्टिंग में दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पर हैं, Q1 एंड Q2, एंड देयरफॉर द लीनियर मोमेंटम्स आर 0. फाइनली M2 is moving with V2. Its linear momentum is M2 multiplied by V2 plus M1 is moving with V1, and therefore we'll write M1 multiplied by V1. Normally लोग इस तरह से लिख देते हैं M1 V, लेकिन linear momentum is a vector quantity and therefore you cannot write V1, you will have to write minus V1. If this direction is positive, then this direction is what? Negative, and therefore linear momentum should be written as minus of V1. यहां हम डील कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के साथ. काइनेटिक एनर्जी इज स्केलर, इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए यहां किसी नेगेटिव साइन का मतलब नहीं है. लेकिन लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर एंड देयरफॉर यू नीड टू राइट दिस नेगेटिव साइन. दिस गिव्स अस द सेकंड इक्वेशन. नाउ देयर आर टू अननोन्स and two equations. Solve these equations and you can find V1 as well as V2.
अगर अभी फोर्स मेथड से इसको हैंडल किया होता तो अभी तक इंटीग्रेशन के स्टेप्स ही चल रहे होते और चीजें डिफिकल्ट हो जाती, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन डिफिकल्ट हो जाती। Whereas once you develop this concept of potential energy, आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इजी हो जाता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। So let's see another example on potential energy. Suppose we have 3-point charges and they are forming an equilateral triangle with side length L. L, L, L. All three are identical charges Q, Q, Q. Their masses are also same M, M, M. And all three are initially at rest. तीनों रेस्ट पर हैं, सेपरेशन है LL. In Coulomb's law, we found force which acts on this charge by these two charges. For that, we used vector method, and with the help of that, we found that force was acting in this direction. Since whole system is symmetrical, this Q will experience a force in this direction, and this Q will experience same force in this direction. All three are under force F, 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 like this. And because of this, separation between these charges increases. And after some time, this Q is found at this position. This Q is found at this position, and this Q is found at this position. And now, length of triangle has increased from L to 2L. But because of these forces, these charges have gained some velocity. And as all three are identical, they will gain same velocity v, like this. The aim is to find v. Three-point charges forming an equilateral triangle. Everything is identical about these charges. They repel with the help of these forces. This force makes this charge Q move from this position to this position, this position to this position, this position to this position, forming a larger equilateral triangle of side length 2L. Starting में तीनों charges rest पर थे initially. All three are at rest. And जब separation 2L हो चुका है, हमारा aim है इनकी velocities को find करना. पूरी की पूरी कहानी symmetrical है, केवल क्या निकालना है v. There is only one unknown. And if there is only one unknown, we only need one equation. जैसे ही आपने इन तीनों charges को release किया, इसका मतलब इस सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स 0 है। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसका वर्क भी 0 होगा, और अगर वर्क 0 है then we'll use COME. F external is 0, W external is 0, and therefore we can conserve mechanical energy. Which means kinetic energy initial plus potential energy initial. U for potential energy, K for kinetic energy. Kinetic energy final plus potential energy final. Before I put values in this equation, अगर हम इस चीज को फिर से फोर्स मेथड से करते तो क्या क्या करना पड़ता? इस Q पर फोर्स निकालते, फिर इस Q पर फोर्स निकालते। दोनों फोर्सेस को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। उन दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ता, फिर जो टोटल फोर्स निकलता वो टोटल फोर्स
दोनों चार्जेस के बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है। वो सेपरेशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है एंड देयरफॉर फोर्स इज नॉन यूनिफॉर्म। इसके लिए इंटीग्रेशन की अप्रोच यूज करनी पड़ती। पहले फोर्स निकालो, फिर उसका वेक्टर सम करो, फिर इंटीग्रेट करो, तब जाकर आपको वेलोसिटीज मिलती। लेकिन एक बार आपने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया तो क्या फायदा हुआ? स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी तीनों चार्जेस की जीरो है, जीरो 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 जीरो, ऑल थ्री आर एट रेस्ट। स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स लुक एट द पोटेंशियल एनर्जी पार्ट राइट हियर। Q एंड Q, हमारे पास तीन चार्जेस हैं। इन तीन चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होगा? कितने पेयर्स आप फॉर्म कर सकते हैं? एक पेयर ये फॉर्म हुआ, 1, एक ये फॉर्म हुआ, 2, एक ये फॉर्म हुआ, 3। हर पेयर के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मेट आएगा वो आएगा K Q Q डिवाइडेड बाय L। सेम इसके लिए, सेम इसके लिए। इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली वो लिखी जाएगी K टाइम्स Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L मल्टीप्लाइड बाय 3। रिमेंबर, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हैं? ऐड। लेकिन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए उसे वेक्टर एडिशन से हैंडल करना पड़ता है। पोटेंशियल एनर्जी इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, इसकी निकालिए, तीनों को ऐड कर दीजिए, ये आ गई है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब सेपरेशन L था तब पोटेंशियल एनर्जी है 3K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय L। एंड फाइनली तीनों चार्जेस V से मूव कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसलिए काइनेटिक एनर्जी बनेगी 3 टाइम्स हाफ mv स्क्वायर। आइडेंटिकल चार्जेस, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इज 3kq square divided by, now separation has changed from L to 2L and therefore you simply need to write 2L right here. क्वेश्चन खत्म। केवल एक इक्वेशन छोटा सा और हमने क्या फाइंड कर दिया है? V। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। स्केलर होने की वजह से चीजें बहुत इजी हो गई हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, एक सिंगल इक्वेशन में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इस सिस्टम के लिए भी सिंस एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो वी कैन यूज COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन हमने उस COLM को डायरेक्टली यूज कर लिया है। किस तरह से यूज किया है? उस COLM की वजह से आपको पता है कि इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v और इसकी वेलोसिटी v तीनों सेम होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। स्टार्टिंग में सिस्टम रेस्ट पर था तो फाइनली भी सिस्टम किस पर होना चाहिए? रेस्ट पर, लीनियर मोमेंटम वाइज। इसलिए तीनों की वेलोसिटीज का इस तरह से अरेंज होना जरूरी है। वंस यू टेक एडवांटेज ऑफ COLM इनडायरेक्टली, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम सिमेट्रिकल है, हमारे लिए केवल एक अननोन बचता है और एक इक्वेशन बचती है जिससे कि आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ once we are comfortable with this use of potential energy, तो हम इसके साथ और क्या क्या कर सकते हैं उन चीजों को देखते हैं। Let's take another example on potential energy. We have a charged ring. Charge on the ring is Q. Q is a ring charge. Radius of the ring charge is R. And on the axis of this ring charge, at distance R, we have a point charge Q. This Q is a point charge. Ring is fixed, it cannot move, and this Q
is initially at rest and is also free to move. Ring is positive. This point charge is also positive. Ring will repel Q along the axis. And if you think that force will be K times Q into Q divided by R square, तो आप previous lectures को देखिए. We cannot use directly Coulomb's law. हमने एक ring charge का उसकी एक्सिस पर फोर्स कैलकुलेट किया हुआ है, which comes with the help of वेक्टर अप्रोच. और जब आप उस वेक्टर अप्रोच से इस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इतना नहीं आएगा. उस फोर्स की वैल्यू निकलती है, अगर यहां से यहां तक का सेपरेशन x है, which right now is r, इस q पर जो फोर्स निकला था उस फोर्स की वैल्यू थी k q q x डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. हमारा एम है इस q की वेलोसिटी फाइंड करना जब ये यहां पहुंचता है. वी नीड टू फाइंड v. लेकिन जब ये q यहां पहुंचा हुआ है तब यहां से यहां तक का सेपरेशन बढ़कर 2r हो चुका है. x की इनिशियल वैल्यू r है और x की फाइनल वैल्यू 2r दे रखी है. इनिशियली चार्ज रेस्ट पर है, फाइनली इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है. डायरेक्टली कूलम्स लॉ लगा नहीं सकते थे, वेक्टर फॉर्म से फोर्स डेवलप किया हुआ है, लेकिन ये फोर्स फिर से आपको दिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म है. लगातार x की वैल्यू चेंज होगी. इस फोर्स को आप m इंटू ए लिख सकते हैं. इस a को आप dv अपॉन dt लिख सकते हैं. एंड देन इस v को फाइंड करने के लिए आपको x की इनिशियल लिमिट r से x की फाइनल लिमिट 2r तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विच इज अ लेंथी प्रोसेस. इंटीग्रेशन भी स्लाइटली डिफरेंट है. जितना आप अभी तक जानते हैं उसमें थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर का इंटीग्रेशन है. लेकिन अगर हम इस वेक्टर अप्रोच को भूल जाएं और फिर से पोटेंशियल एनर्जी के पास चलें, देखिए क्या फायदा होता है. Look at the advantage of potential energy. Ring charge is fixed. Point charge is free to move. और इस point charge की velocity को निकालने के लिए हमने क्या देखा, इस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है. सिस्टम मीन्स Q एंड Q. क्यों नहीं है? दिस Q इज फ्री, लेकिन ये जो Q है ये फिक्स है. Somebody is holding this string charge Q. If somebody is holding this fixed charge, तो वो somebody ये है, external force, and therefore external force is not zero. दो internal forces हैं. ring charge point charge को इधर repel करेगा, point charge ring charge को इधर repel करेगा. इस repulsive force की वजह से ये ring left जाना चाहती थी. इस external force ने इसको रोका हुआ है. तो सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है. अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो हम COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यूज नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज इट. लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है क्योंकि इस रिंग पर आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया हुआ है. But now look again at this place, fixed. Fixed means जो एक्सटर्नल आदमी इस रिंग पर फोर्स लगा रहा है उसका वर्क अभी भी जीरो है. फोर्स तो लग रहा है एक्सटर्नल, बट सिंस रिंग इज नॉट मूविंग हिज वर्क इज जीरो. और अगर एक्सटर्नल वर्क जीरो है
तो हम क्या यूज कर सकते हैं, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर से सुनना, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है नहीं, लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि इसको रोकना है। अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व नहीं कर सकते। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स लगने के बावजूद आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नल फोर्स इस रिंग के फिक्स होने की वजह से वर्क नहीं कर रहा। अब अगर वर्क नहीं हो रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करने का तरीका यहां पर है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इस रिंग का इसके ऊपर फोर्स निकाला था तो उसके लिए वेक्टर अप्रोच यूज की थी। लेकिन अगर किसी रिंग का किसी पॉइंट चार्ज के साथ आपको पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन डेवलप करना है तो देखना वो कितना आसान है। सपोज ये डिस्टेंस है x और यहां रखा हुआ है q, दिस इज योर q। ये जो पूरी की पूरी रिंग है, इसका इस पॉइंट चार्ज से जो डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस बनेगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमारे पास रिंग है, दैट्स योर रिंग, दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस इज एक्स। अगर ये x है और ये r है, देन दिस डिस्टेंस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो फिर रिंग चार्ज इस पॉइंट चार्ज के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी बनाएगा वो बनेगी k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट एक लाइन में आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। इन जस्ट वन लाइन वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी पार्ट। जबकि फोर्स निकालते वक्त आपको इस पॉइंट चार्ज का फोर्स निकालना पड़ा था, इस पॉइंट चार्ज का फोर्स निकालना पड़ा था, उनके वर्टिकल कंपोनेंट्स को कैंसिल करना पड़ा था, अलोंग द एक्सिस कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करना पड़ा था। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी बीइंग स्केलर, इस पूरी रिंग पर जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं, इस पूरी रिंग पर जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं, इन सब पॉइंट चार्जेस का इस q के साथ जो डिस्टेंस आएगा, दैट डिस्टेंस इज ऑलवेज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होने की वजह से इस पूरी रिंग की पोटेंशियल एनर्जी q के साथ केवल क्या बनेगी, k q q डिवाइडेड बाय दिस सेपरेशन व्हिच इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बार आपने k q q अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा तो क्वेश्चन खत्म है। Initial potential energy is k q into q divided by root over r square plus small r square. Initial separation is what? r. Kinetic energy केवल q मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, v, and therefore this kinetic energy is half m v square plus, जब सेपरेशन r से चेंज होकर 2r हुआ तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो गई है, k q q रूट ओवर r स्क्वायर प्लस 2r होल स्क्वायर। x की जगह चेंज कर दिया हमने 2r। वन इक्वेशन एंड ओनली वन अननोन, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस।